guys, welcome to Frontline Umbrella. You know what? We sometimes find prepositions very tricky. Sometimes it's really challenging to decide which preposition is suitable for a particular situation. So let's learn some of them today. Here the first pair we have is on the street and in the street. क्या आप इन दोनों phrases को differentiate कर सकते हैं? Let me visualize you the situation. आप एक street देख रहे हैं. Along the street दोनों तरफ कुछ houses हैं. इन houses की location बताने के लिए आप कौन सा preposition use करेंगे? Let's see one more situation. एक लड़की street पर चलते हुए सामने से आ रही है. क्या यह लड़की on the street चल रही है या in the street चल रही है? Let's find out when to use on the street and when to use in the street. On is used to mention street location. Along the street दोनों साइड पर present किसी भी चीज की location बताने के लिए on the street का use करते हैं. If you live on a street, you live near that street. For example, अगर आप street 11 के आसपास रहते हैं तो आप कहेंगे I live on street 11. Let's see one more example. We had breakfast in a beautiful restaurant on Green Street. The beautiful restaurant is situated on the side of Green Street. Now let's see in the street. जब कोई भी चीज स्ट्रीट पर होता है या स्ट्रीट पर चल रहा होता है तो उसकी पोजीशन या मूवमेंट इन द स्ट्रीट होता है. For example, look at her, she is walking in the street. Look at those beautiful cars, they are running in the street. Let's see one more example. जब निशा रोड पर थी, उसका एक मोटर बाइक से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. While Nisha was in the street, she had a minor accident with a motorbike. आप स्कूल में है ये बताने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? At या in? Are you at school? या are you in school? Answer to this question is we sometimes use at but sometimes in. So what is difference between at school and in school? Let's see when to use at school and when to use in school. At किसी specific location को mention करता है. जैसे कि मैं दुकान पे था at the shop. मैं गांव में था at the village. If you are at school, you are literally present there. That's all. यह सिर्फ आपके प्रेजेंस को मेंशन करता है कि आप स्कूल में हो. आप स्कूल में एज ए टीचर हो, एज ए स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो, इससे उसको कोई वास्ता नहीं. बस आप स्कूल में हो इसी बात को मेंशन करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पेरेंट्स अभी स्कूल गए हैं मेरे स्कोर कार्ड रिसीव करने के लिए, तब हम कहेंगे दिस टाइम माई पेरेंट्स आर एट स्कूल टू गेट माई स्कोर कार्ड. यहाँ एट मेरे पेरेंट्स की लोकेशन बता रहा है. वो वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है और ना ही वो टीचर है वहाँ पे. एट सिंपली ये बता रहा है कि वहाँ पे प्रेजेंट है. ऑन द अदर साइड, व्हाट डज मीन इफ यू से आई एम इन स्कूल? इन एक्सप्रेसेस कंसेप्ट ऑफ बीइंग इन एन इंस्टीट्यूशन. आप उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर हो, आप उस इंस्टीट्यूशन के हिस्सा हो, पार्ट हो आप उन इंस्टीट्यूशन के. इन एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट ऑफ बीइंग इन एन इंस्टीट्यूशन. इफ यू से यू आर इन स्कूल, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी इस वक्त एट दिस मोमेंट स्कूल में प्रेजेंट हो. इसका सिंपली ये मतलब है यू आर ए स्कूल गोइंग स्टूडेंट. आप स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हो सकता है अभी आप घर पे हो सकता है आप अभी कहीं पे हॉलीडे मना रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, in 2005 when I was in school, my parents were killed in a riot. 2005 में मेरे पेरेंट्स एक राइट में मारे गए जब मैं एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था. I hope now you can differentiate when to use at school and when to use in school.
जब आप या आपका घर बीच के आसपास होता है तो अपना लोकेशन या घर का एड्रेस बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? What do you think? Which one is right? At the beach or on the beach? क्या at the beach कहना सही है? On the beach कहें तो कैसा रहेगा? What do you think? Is there any difference between these two phrases? Let's see. जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, at का यूज लोकेशन बताने के लिए करते हैं। मैं गांव में हूं, I am at the village. तुम चौराहे पर हो, you are at the crossroads. Similarly, if you are at the beach, you are present there at this very moment. It's your location. यहाँ देखिए, दो लोग बीच के किनारे बैठे हैं। They are at the beach. यहाँ at the beach उन लोगों का लोकेशन बता रहा है, एड्रेस नहीं। हो सकता है वे लोग यहीं आसपास के रहने वाले हो, या हो सकता है कहीं और से घूमने फिरने आए हो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। मंडे को जब भूकंप आया, मैं बागा बीच पर था। आई वॉज एट बागा बीच व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्रक ऑन मंडे। एट द बीच हैज अ सेकेंड मीनिंग। एट द बीच का यूज आप एड्रेस बताने के लिए भी कर सकते हैं। If you live at the beach, it's your address. यहाँ आपका घर है, आप यहीं रहते हो। यहाँ देखिए, बीच के किनारे कुछ घर हैं तो लोग भी रहते होंगे। These houses are at the beach. They live at the beach. Let's see an example. हम 90 की दशक से बागा बीच पर रहते आ रहे हैं। We have been living at Baga Beach since 90s. ऑन द बीच, इसका क्या मीनिंग है? आइए इसको अब समझते हैं। ऑन द बीच का यूज हम किसी की उस पोजीशन को बताने के लिए करते हैं जहां पानी जमीन से मिलता है। इसी को शोर लाइन कहा जाता है। इफ यू आर ऑन द बीच, यू आर ऑन शोर लाइन। यहाँ देखिए, वाटर वेव जहां लैंड से मिलता है वहीं एक ओल्ड मैन बैठा है। इसकी पोजीशन बताने के लिए कहेंगे द ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द बीच। बूढ़ा आदमी बीच के किनारे पर बैठा है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। जब कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, मैं बीच के किनारे पर बैठा था। While some people were catching fish, I was on the beach. Our next challenge is to differentiate between in water and on water. क्या आप जानते हैं इन वाटर और ऑन वाटर में क्या डिफरेंस है? When we use in water and when we use on water. No idea? If you are in water, you are either fully or nearly immersed in water. हम इन वाटर का यूज तब करते हैं जब कोई चीज पानी में कंप्लीटली डूबी हो, या कुछ पार्ट पानी के अंदर और कुछ पार्ट्स पानी के बाहर हो। यहाँ देखिए, कुछ फिश पानी के अंदर तैर रही है। द फिश आर स्विमिंग इन द वाटर। लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल। इट्स अबाउट अ डाइवर। डाइवर मीन्स गोताखोर। A diver can remain in water for several minutes without breathing. एक गोताखोर पानी के अंदर कई मिनट्स तक रह सकता है बिना सांस लिए। अब यहाँ देखिए, एक फिशरमैन पानी में खड़ा है। उसके बॉडी का कुछ पार्ट्स पानी के अंदर और कुछ पार्ट्स पानी के बाहर है। इसलिए हम कहेंगे द फिशरमैन इज इन द वाटर। स्विमिंग के लिए भी हम इन वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि स्विमिंग के दौरान बॉडी का कुछ पार्ट पानी के अंदर और कुछ पार्ट्स पानी के बाहर होता है, और कई दफा पूरा बॉडी ही पानी के अंदर होता है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। आई स्पेंड 2 hours इन द सी हंटिंग फॉर एडवेंचर। हंट फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, और एडवेंचर का मतलब होता है मौज मस्ती, रोमांच। तो आई स्पेंड 2 hours इन द सी हंटिंग फॉर एडवेंचर, इसका मतलब है मैंने मौज मस्ती के लिए समंदर में 2 घंटे बिताया।
Now we are going to discuss on water. If you are on water, you are on something such as a boat floating on the surface of the water. On water का यूज तब की जाती है जब कोई चीज वाटर सरफेस पर तैर रही हो और आप उसके ऊपर हो। यहाँ देखिए, वाटर सरफेस पर स्मॉल बोट चल रही है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा होकर उसे चला रहा है। ऐसे सिचुएशन में उस आदमी के लिए ऑन द वाटर यूज की जाती है। द मैन इज ऑन द वाटर। लेट्स विजुअलाइज वन मोर एग्जाम्पल। आई हैड बेस्ट 2 hours ऑफ माई लाइफ सर्फिंग ऑन द बीच। बीच में सर्फिंग करते हुए मैंने अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत 2 घंटे बिताया। वी कैन एक्सप्लोर दिस पॉइंट इवन फर्दर। लेट्स कंसिडर ऑन plus definite article plus name of a water body. If you are on a water body, you are on the shore of that water body. जब कोई चीज किसी वाटर बॉडी के किनारे लैंड पर होता है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए on plus definite article plus name of that वाटर बॉडी का यूज करते हैं। यहाँ देखिए, एक कपल नदी के किनारे बैठा है, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम कहेंगे ए कपल इज सिटिंग ऑन द रिवर। ऑन द रिवर से मतलब है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। वी सेलिब्रेटेड आवर मैरिज सेरेमनी ऑन द सी। ऑन द सी मीन्स ऑन द सी शोर, मतलब समुद्र के किनारे। Now guys, it's your turn. Check how much you have understood. 4 challenges are listed here. Fill in the blanks with the most suitable preposition given below. Question number 1. We are going to see our friend whose shop is dash Central Street. Question number 2. My husband, who is a businessman, will be dash school today at 2 o'clock. Question number 3. Kanishka works in a restaurant dash the beach. Question number 4. Some security guards have been dash the sea for a week in search of a suspect. That's all for today guys. Like, share and subscribe to get instant update. Put your comments and queries below in the comment section. Thanks guys.